السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج کے درس میں الوحدہ الثالثہ سکن کا الدرس الثالث والعشرون، درس نمبر 23 پڑھیں گے، اور التدریب الخامس یعنی پانچویں تدریب۔ تدریب میں جیسا کہ بتایا تھا، جو کلمہ جو تعبیر درس میں آئی ہوتی اسی تعبیر کو اور مختلف طریقوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک آیا تھا کم غرفہ فی الشق کا خمس غرف، اسی کو اور مختلف طریقوں سے اور اس میں کچھ اضافہ کر کے نمبر کا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ مبنا بنی مبنا، جس کو ہم عمارہ یا بلڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو نمبر کم زیادہ کر کے کہیں پر رابع خامس آپ کو پڑھا جائے گا۔ اچھا، تدریب الخامس، مامنا تدریب الخامس، ایکسرسائز نمبر 5، مشق نمبر 5، تمرین نمبر 5، تبادل السوال والجواب مع زمیل کما فی المثال۔ اب اپنے دوست کے ساتھ سوال و جواب کریں جیسا کہ اس مثال میں ہے۔ مثال پر آپ غور کریں، خمس غرف، خمس غرف، پھر الدور الخامس، دو الگ الگ چیزیں، دونوں ایک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر میں دونوں ایک جیسے ہو جا رہے ہیں۔ خمس غرف الگ ہے، الدور الخامس الگ ہے۔ ایک چیز کو پہلے اگر آپ سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، الدور کو پہلے لے لیتے سمجھ جاتے ہیں تمام میں۔ نیچے کی جتنے فوٹو پہلے الدور والے کو سمجھ لیتے ہیں۔ الدور الخامس، ما منع الدور؟ الدور کا مطلب کیا ہے؟ فلور. ہاں، الدور کا مطلب فلور، منزل، مالا۔ الدور الففتھ فلور، پانچواں منزلہ، الدور الخامس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نیچے کے فوٹوز دیکھیں، الدور الرابع، الدور الرابع، الدور الثالث، الدور الثانی، الدور الاول، یہاں الدور الخامس۔ اب ایک مطلب غور سے دیکھیے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ نیچے جو ہے وہ الدور الارضی، جو آپ کو اصل گیٹ دکھ رہا ہے، مین گیٹ، وہ دور اول نہیں، الدور الارضی۔ تو ایک نمبر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے نہیں، یہ ایک نمبر نہیں ہے۔ ایک نمبر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، اوپر خمسہ۔ اسی طرح یہاں پر واحد، واحد، اثنان، واحد، اثنان، ثلاثہ، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی پڑھتے ہیں جی دوبارہ، شیخ. دور کا ہی پڑھتے ہیں۔ الدور الخامس، الدور الرابع، الدور الثالث، الدور الثانی، الدور الاول۔ ابھی ہم الٹا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کچھ۔ الدور الاول، الدور الثانی، الدور الثالث، الدور الرابع، الدور الخامس۔ ابھی کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی شیخ. ہاں، ابھی دیکھیے، ہر فلور پر صرف ایک فلور یعنی ایک منزل یا ایک مالا ہائی لائٹ ہے، وہاں پر لائٹ آپ کو جل رہی ہے، اسی کو آپ کو سمجھنا ہے، اس کو آپ کو کیئر کرنا ہے۔ یہاں آپ کو بتائے گا الدور الاول، الدور الثانی، الدور الثالث، الدور الرابع، یہاں الدور الخامس تھوڑا اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الدور الاول آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر لائٹ کہاں پر جل رہی ہے؟ الدور الثانی کہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ لائٹ کہاں پر جل رہی ہے؟ الدور الثالث کہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ لائٹ کہاں پر جل رہی ہے؟ الدور الرابع کہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ لائٹ کہاں پر جل رہی ہے؟ اور آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ نیچے کا جو الدور الارضی جو مین گیٹ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ورنہ کنفیوز ہوں گے آپ۔ پھر بھی ایک مرتبہ میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں، اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا آپ۔
अभी समझ में आया होगा गालमन सबको। फिर एक मरतबा मैं उल्टा पढ़ता हूँ। अद्दौरुल अव्वल, अद्दौरुल सानी, अद्दौरुल सालिस, अद्दौरुल राबे, अद्दौरुल खामिस। अभी बराबर ये भी दिख रहा है। फिर एक मरतबा पढ़ते हैं इसको। अद्दौरुल अव्वल, अद्दौरुल सानी, अद्दौरुल सालिस, अद्दौरुल राबे, अद्दौरुल खामिस। समझ में आ रहा है अभी आपको ये? जी जी। सर। हाँ। अभी एक चीज तो क्लियर हो गई, किस फ्लोर पर है, किस मंजिल पर है। अभी उसके साथ उस शक्का में कितने रूम है, ये बतलाना चाह रहे हैं। अभी तक जो चीज आपको बताई, अभी इस पर को इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तरतीबवार एक एक चीज बताने की कोशिश कर। पहली चीज दौर को बताया है, किस दौर पर है, तो ये तरतीब से अव्वल सानी सालिस राबे खामिस। ये कैसे आपको समझना है? लाइट जल रही, अव्वल सानी सालिस राबे, सब एक एक फ्लोर आपको ऊपर होते जा रहा है। आप इस तरह अगर आप जाएंगे तो अप साइड जा रहे हैं। ठीक है, अव्वल सानी सालिस राबे खामिस। अब उसके बाद दूसरी चीज ये देखना है कि उस फ्लोर पर, उस शक्का में, उस फ्लैट में कितने रूम है। ये तो रूम खुला हुआ नहीं, तो हमको कैसे अंदाजा होगा? वो ऊपर लिखा हुआ है, हर शक्का के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो उस शक्का के अंदर रूम को बता रहा है। क्योंकि रूम तो खुला हुआ नहीं है, फ्लैट का दरवाजा बंद है, तो कैसे समझ में आएगा इस फ्लैट में कितने रूम है? वो नंबर लिखा हुआ बाहर। समझ रहे हैं ना? यहाँ देखते इसको करते, यहाँ खमसा लिखा हुआ है, यहाँ अरबा लिखा हुआ है, यहाँ सलासा लिखा हुआ है, यहाँ खमसा, यहाँ अरबा। समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका? पढ़ने से पहले अभी इस नंबर को समझें। ये मतलब है, यहाँ पर इसमें 5 रूम है, यहाँ पर 4 रूम है, यहाँ पर 3 रूम है, यहाँ पर 5 रूम है, यहाँ पर 4 रूम है। इसमें कोई तरतीब नहीं। समझ रहे हैं ना? जी सर। जिस शक्का में या उस शक्का में कितने रूम हैं, कितने गुरफा हैं, वो नंबर बाहर लिखा हुआ है। अभी अद्दौर वाला मैं नहीं पढ़ूंगा, उस नंबर को पढ़ूंगा और कितने रूम है ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये पढ़ते हैं। खम्सु गुरफ। अभी पढ़िए मेरे साथ। खम्सु गुरफ, हम हम सुगुर गुरफ, अरबउ गुरफ, अरबा गुरफ, अरबा सलासु गुरफ, सलासु सलासुगुरफ खम्सु गुरफ, खमसुगुरफ खमसुगुरफ, अरबउ गुरफ। अरबा अरबउगुरफ। गुरफ। किस शक्का में, किस फ्लैट में कितने रूम हैं, इसको जानने का सिर्फ यही एक तरीका है कि कितने रूम हैं वो आपको बाहर लिखा हुआ नंबर। ठीक है, बाकी वो किस फ्लोर पर है वो तो आपको इस लाइट से अंदाजा हो रहा था। फ्लोर का अंदाजा आपको लाइट से हो रहा था, और एक एक नंबर आपको ऊपर यहाँ से चल रहा था, अव्वल सानी सालिस राबे और यहाँ पर खामिस। ठीक है, लेकिन कितने रूम है वो कैसे आपको पता चलेगा? वो नंबर जो बाहर लिखा हुआ है। अभी दोनों चीजें समझ में आई या नहीं? जी। जी। हाँ। अभी इन दोनों चीजों में कोई सवाल है? अभी इसको मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये अलग, इसको पढ़े बगैर समझने की कोशिश करें। एक मतलब दोबारा जो लिखा है वो सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ, फिर सवाल जवाब पर आएंगे। खम्स गुरफ। पढ़िए नहीं, अभी आप सुनिए। अद्दौरुल खामिस, अरबउ गुरफ, अद्दौरुल राबे, सलासु गुरफ, अद्दौरुल सालिस, खम्स गुरफ, अद्दौरुल सानी, अरबउ गुरफ, अद्दौरुल अव्वल। समझ में आया अभी आपको? जी उस्ताद। जी। अभी मुकम्मल सवाल जवाब पर आते हैं, जो ये लिखा हुआ है। अभी इसको पढ़, क्योंकि ये शुरू में पढ़ते थे बड़ा मुश्किल था ये समझाना, इसलिए अलग अलग जुमलों को तरतीब से समझाया गया, पहले दौर को फिर गुरफ को ना। कम गुरफतन फी शक्कति खम्स गुरफ, फी अय्यि दौरिन अशक्का, फी दौरिल खामिस। مرة ثانية. कम गुरफतन फी शक्का, फी शक्कति खम्स गुरफ,
फी अय्यि दौरिन शक्का फी दौरिल खामिस। यानी दो सवाल बन रहा है, जैसा कि ये दो जवाब है तो उस पर दो सवाल बन रहा है। पहला सवाल, कम गुरफतन फी शक्का, कम गुरफतन फी शक्का, ये सब तमाम फोटो बनेगा आपको। अगर आप यहाँ पर पहले फोटो पर समझ गए तो तमाम में उसी तरतीब से करना। सवाल वही रहेगा, जवाब में तब्दीली होगी। कम गुरफतन फी शक्कति खम्स गुरफ फी अय्यि दौरिन अशक्का फी दौरिल खामिस। अभी पढ़े कोई इसको। कम गुरफतन, कम गुरफतन फी शक्का नाम, फी शक्कती खमसु गुरफा खम्स गुरफ, खम्स गुरफ, खमसु गुरफ नाम, फी अय्यि फी फी अय्यि दौरिन अशक्का, फी अय्यि दौरिल शक्का फी अद्दौरी खमसी अद्दौरिल खमसी। खामिस। देखिए यहाँ पर क्या है, फिफ्थ फ्लोर पर रूम भी है और उसमें 5 रूम है भी, इसमें कोई मसला नहीं। जहाँ दोनों अलग अलग होंगे वहां थोड़ा सा मसला होगा। यहाँ पर 5वें माले पर, फिफ्थ फ्लोर पर 5वीं मंजिल पर रूम भी है और 5 रूम है भी उसमें। अच्छा, अभी नीचे देखते हैं। यहाँ पर भी वही सवाल होगा, कम गुरफतन फी शक्का, सवाल वही रहेगा, कम गुरफतन फी शक्का। जवाब क्या होगा, फी शक्कति गुरफ। फी यहाँ जवाब क्या शक्कती होगा, शक्कती अद्दौरिल अरबौ। राबे फिर फी अय्यि दौरिन अशक्का, जवाब होगा फी दौरिर राबि। समझ में आया दूसरा फोटो। जी। हाँ, अभी तीसरे फोटो पर आते हैं। वही सवाल आएगा, पहला, कम गुरफतन फी शक्का, क्या जवाब होगा, फी शक्कति सलासु सलासु गुरफ। दूसरा सवाल, फी अय्यि दौरिन अशक्का फी फी दौरि सालिस, अद्दौरी फी दौरि सालिस। समझ में आया यहाँ पर। ये सवाल सब में वही रहेगा, कम गुरफतन फी शक्का और फी अय्यि दौरिन अशक्का, सवाल वही रहेगा, जवाब बदलेगा। अगले फोटो पर आते हैं। कम गुरफ शक्का फी शक्कति, क्या जवाब होगा, खमसु गुरफ खम्सु गुरफ। खम्स गुरफ। नाम, अगला सवाल, फी अय्यि दौरिन अशक्का, जवाब फी दौरि दौरी फिद्दौरी सानी। सानी। ठीक, सानी इसी तरतीब पर आखिरी फोटो पर आते हैं। कम गुरफतन फी शक्का फी शक्कति अरबौ गुरफ। अरबऊ गुरफ। अगला सवाल, फी अय्यि दौरिन अशक्का फी दौरिल फिद्दौरिल अव्वल। अव्वल। ये देखिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन दो चीजों को मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों को एक साथ समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हाँ, अभी कोई सवाल इस पर सवाल कर सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो भी आप बोल सकते हैं। हाँ, आगे सबको समझ में। जी सर। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तदरीब सादिस, हाथी जुमलन कमा फिल मिसाल। क्या मतलब है, हाथी जुमलन कमा फिल मिसालैन, मिसाल नहीं, मिसालैन। मिसालैन यानी दो मिसाल, दोनों मिसाल, मिसाल अव्वल और मिसाल सानी। आपको ये जिस तरह दो मिसालों में जुमले बनाए गए हैं, इसी तरह आपको नीचे जुमले बनाना है। आप यहाँ पर गौर करेंगे, सब दोनों की इब्तिदा लदईना से हो रही है, लदईना। मा माना लदईना, हमारे पास। लदईना का माना क्या होता है, हमारे पास। उसके बाद देखेंगे एक में मुअन्नस है, यहाँ पर शक्का जमीला ये मुअन्नस है इसलिए बोलता है। यहाँ पर बैतुन जमील मुदक्कर है। ठीक है, तो आप अगर मुअन्नस है तो उसके साथ सिफत मुअन्नस आएगी, मुदक्कर है तो सिफत मुदक्कर आएगी। अभी पढ़ते हैं। लदईना शक्कतुन जमीला, अलमिसाल अव्वल। अलमिसाल सानी, लदईना बैतुन जमील। नाम, कोई तालिबा पढ़े दोबारा इसको, अलमिसाल अव्वल व सानी को। नाम, लदईना, लदैना शक्कतुन जमीला नाम,
لدينا بيت جميل. ना मुमताज। अब इसमें कोई ऐसा लफ्ज जिसका माना नहीं आ रहा आपको? मा माना लदईना, क्योंकि इसी तरतीब पर नीचे बोलेंगे, यही समझ लेते। मा माना लदईना, यहाँ भी वही लफ्ज है, हमारे पास. हमारे हमारे पास। पास। हाँ। उसके बाद देखिए, एक लफ्ज कामन है दोनों में, जमीलतुन, यहाँ जमीलुन। जो माना जमीलतुन का वही माना जमीलुन का, बस मुजक्कर के साथ जमीलुन, मुअन्नस के साथ जमीलतुन। ना मा माना जमील या जमीलतुन, ब्यूटीफुल. खूबसूरत। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। खूबसूरत। जब मुजक्कर है तो आप जमीलुन बोलेंगे, मुअन्नस है तो जमीलतुन बोलेंगे, ठीक है? इसका ख्याल करना आपको। ऐसा नहीं कि कहीं भी जमीलुन, कहीं पर भी जमीलतुन। जहां मुजक्कर है तो वहां जमीलुन, जहां मुअन्नस है तो जमीलतुन। बाकी जो लफ्ज मौजूद है वो तो लिखा हुआ है। शक्का आपको लिखा हुआ है, बैतुन आपको लिखा हुआ है। माँ माना शक्का है तो पढ़ चुके बार बार, फिर भी माँ माना शक्का। अपार्टमेंट. हाँ, हाँ। सबका फ्लैट. अपार्टमेंट या फ्लैट बोले ज्यादा बेहतर। और बैतुन, घर. घर। घर। अच्छा, एक मतलब जो कलिमात लिखे हुए सिर्फ उसको पढ़ लेते ना। असासुन, अरीकतुन, हुर्नुन, सज्जादतुन, सखानुन, गुरफतुन। इसमें कोई नया लफ्ज नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। जब हेवार रहता है तो हेवार में नए कलमात है, हेवार नहीं, तदरीबात है, मश्क है। हाँ, कोई तालबा पढ़े दोबारा। असास नाम, सिर्फ कलिमात। असास. नाम, अरीकत. नाम, फुरनुन. नाम, सज्जाद. सज्जादा. नाम, सखान. गुरफा. नाम, नाम। कोई मुश्किल लफ्ज है, कोई नया कलमा है जिसका माना नहीं मालूम किसी को? नहीं शेख. नहीं, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर। अभी क्या करना है हमको, कि ऊपर की मिसालों की तरह हमको बोलना है। यानी हर जुमले के पहले, यानी जुमला नहीं कहें, सॉरी, हर कलिमा से पहले, हर लफ्ज से पहले हमको क्या इजाफा करके बोलना रहेगा? कौन बताएंगे? लदीना. लदीना. लदैना। जो भी कलिमा लिखा हुआ उससे पहले हमको लदैना का इजाफा करना है हर जगह, ठीक है? लदैना का इजाफा करना, बराबर है? तो हर कलिमा, हर जुमला के शुरू में आपको लदैना बोलना, लदैना, ठीक है? और आखिर में क्या बोलना है आपको? उस कलिमे के बाद क्या बोलना है? जमीलतुन. मुअन्नस हो तो जमीलतुन या जमीलतुन, जमील. जमीलतुन या जमीलुन, ठीक है? अभी प्रैक्टिस करते हैं ना। लदैना शक का जमीला पढ़ा हमने, लदैना बैतुन जमील, इसी तरह हमको यहाँ पर बोलना है नीचे। हाँ, आसान है तो आप पढ़ें, या मैं पढ़ाता हूँ ना। असास कैसे बोलेंगे? नाम, लदैना सासन जमील। जमील ना, मुमताज। नाम, नाम। अरीका कैसे बोलेंगे? लदैना अरीकतुन जमीलतुन। मुमताज। नाम, पुरनुन, लदैना फुर्नुन जमील। मुमताज। नाम, सज्जादा। लदैना सज्जादतुन जमीलतुन। नाम, सखान, लदीना सखान. लदैना सखान जमीलतुन. जमील। जमीलुन, जमीलतुन नहीं। अच्छा, गुरफा। लदैना लदीना गुरफतुन गुरफा जमीलतुन। जमीलतुन. माशाल्लाह, सही बोला आप लोगों ने, कुछ भी गलत नहीं। अब बता, एक क्योंकि मिक्स है दोनों, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था? और आसान करने के लिए पहले हम एक को ले लेते हैं, मान लीजिए मुदक्कर को ले लेते पहले, और उसको पहले पढ़ा देते। असासुन को पढ़ा देते, हुर्नुन को पढ़ा देते, सखानुन को पढ़ा देते। तो फिर अब इस सब में क्या बोलते? लदैना असासुन जमील, लदैना कुरनुन जमील, लदैना सखानुन जमील। तो एक उसलूब रहता। फिर हम किसको शुरू करते? जमीलतुन को। फिर हम सब में बोलते लदैना अरीकतुन जमीला, लदैना सज्जादतुन जमीला, लदैना गुरफतुन जमीला। इस तरीके में क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप शुरू में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मिक्स है दोनों, कहाँ पर जमीलुन कहाँ पर जमीलतुन, थोड़ा सा इश्काल हो सकता है। तो जब आखिर में बोलता है तो आप उसके साथ जमीलतुन बोलेंगे, बोलता नहीं है तो आप उसके साथ जमीलुन बोलेंगे। यानी आसान लफ्जों में जमीलुन मुदक्कर के लिए, जमीलतुन मुअन्नस के लिए। तो ये कलिमात या ये ताबीर बोलना लदैना लगाकर मुश्किल हुआ या आसान?
آسان ہے شیخ. آسان. ٹھیک. ہاں کلمات کوئی مشکل نہیں، کلمات کوئی مشکل نہیں. ہاں آگے پھر ملخص التراکیب آ رہی، یہ ہم پڑھیں اس سے پہلے. ملخص التراکیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے آپ پڑھیں ان کو خلاصے کے طور پر ایک پیج میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ وعدہ ثالثہ پڑھ رہے ہیں، وعدہ اولا میں بھی یہ چیز تھی، وعدہ ثانیہ میں بھی. ابھی سوچتے ہیں کہ اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانے. ملخص التراکیب کا مطلب کیا ہوا، کوئی بتائے اپنے الفاظ میں. Match the following. نہیں، ملخص التراکیب. ترکیب سے ملانا. ہاں ملانا نہیں، ملخص کا مطلب اصل میں ہوتا ہے خلاصہ، سمری، تلخیص. کوئی چیز 4 صفحہ میں ہے، آپ نے اس کا خلاصہ ایک صفحے میں کر دیا. ایک صفحے میں کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو 2-3 لائن میں کر دیا، یہ اس کو کہتے ہیں تلخیص. سمری سمری غالباً شیخ، بولتے ہیں انگلش میں. سمری. سمری. سمری نا. جی شیخ. So brief summary ہاں ہوگی. Yes. تو جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی تراکیب پڑھے آپ وعدہ ثالثہ میں، تراکیب خاص طور پر التراکیب نحویہ گرامر کی چیزیں، اس کو لا کر ایک جگہ پر تاکہ ایک ساتھ آپ کو ساری چیزیں. ٹھیک ہے. ہاں. ابھی آپ دیکھیے، میں چاہتا ہوں آپ خود پڑھیں، یہاں کوئی مشکل چیز نہیں. وعدہ اولا وعدہ ثانیہ میں سمجھا چکا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اریدو جیسے آپ کو سب پر بولنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک ترکیب یا ایک پورا پیج یا ایک پوری تدریب پڑھیں جس میں آپ کو اریدو بولا گیا. اس میں کیا کرنا، اریدو کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے، جو لفظ آ رہا ہے وہ منصوب ہوگا. یہ اصل میں آپ کو خیال کرنا ہے. اریدو ستارتن، اگر آپ بولتے ہیں ستارتن یا ستارتن تو غلط ہو جائے گا. کیا بولنا آپ کو اریدو کے بعد؟ ڈبل زبر میں پڑھنا ہے. ہاں ڈبل زبر، ستارتن. تنوین فتح. تو کیا بولتے ہیں، تنوین فتح. اب اس میں بھی دیکھیں گے آپ، دو لاسٹ کی یہ مذکر ہیں، قرنن سخانن، اور یہاں پر اوپر کے 4 مؤنث ہیں. ابھی پڑھیں، سب کے ساتھ اریدو لگا کر بولنا. ہاں کون پڑھ رہے ہیں؟ اریدو سیارتن. ستارتن ہے، ستارتن ہے. ستارتن. نام. اریدو اریکتن. نام. اریدو ثلاجتن. نام. اریدو مرآتن. نام. اریدو فرنن. نام. اریدو سجانن. سخانن. 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 نام. سوری. ابھی دوسرے پر آتے ہیں. سخانن. ابھی آپ دیکھیے، ہل تسکنو فی، یہ تینوں ایک ساتھ جڑے گا، پھر سب کے ساتھ جوڑنا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی. کوئی نیا کلمہ نہیں آنا، پھر بھی اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نام ایسا ہی بولنا آپ کو. نام اسٹارٹ کیجیے. جی. نام. هل تسكن في بيتي؟ نام. هل تسكن في شقة؟ نام. هل تسكن في حي المطار؟ نام. هل تسكن في حي الجامعة؟ نام. کوئی مشکل پیش آئے اس میں؟ جی نہیں. ہاں اس میں کوئی مشکل لفظ ہے چاروں میں؟ نہیں استاد. نہیں. ہاں. هل تسكن في بيت، هل تسكن في شقة، هل تسكن في حي المطار، هل تسكن في حي الجامعة. نعم. ابھی اگلے پر آتے ہیں. اگلے پر جواب میں نعم یا لا، کہیں پر نعم کہیں پر لا بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نعم. نعم. نام کا پہلے مشق کرتے ہیں. کیسے آپ آئیں گے، اسکنو فی. نعم. چلیے کون بولیں گے، نام کو پہلے لیتے ہیں. نعم اسکنو فی بیت. نعم أسكن في بيت. نعم. نعم أسكن في شقة. م. نعم أسكن في الحي المطار. م. نعم أسكن حي الجامعة.
फी हय्यिल जामिया। في حي الجامعة. एक दूसरी ताबीर आप नाम की जगह ला लगाकर बोल सकते हैं। ला, ला के जरिए, ला वाला कोई दूसरी तालबा बोले, ला थोड़ा सा रुकिए, नाम के साथ बोल सकते हैं लेकिन ला में थोड़ा सा रुकिए। ला अस्कुनु फी हय्य फी बैत, अस्कुनु फी शक्का। नाम ला का बोलिए अभी। لا أسكن في بيت. नाम لا أسكن في شقة. नाम لا أسكن في حي المطار. नाम لا أسكن في حي الجامعة. नाम। कोई मुश्किल पेश आई इसमें? नहीं शेख। हाँ, फिर नीचे आते हैं। नाम, अब यहाँ पर देखिए फी शक्का, ये अभी जो हम पढ़े वो चीज है, आपको ऐसा जोड़ना है, इन तीनों के साथ ऐसा बोलना, ठीक है। नाम कौन पढ़ेंगे? मुकम्मल कर लेते हैं इसको। नाम, नाम फी शक्का, फी शक्कति सलासु गुरफ। في في شقة شقة 3 غرف. नाम في شقة 4 غرف. नाम في شقة 5 غرف. मुमताज। आगे आते हैं खामिस पर। उरीदो जो हम बोले थे इससे पहले यहाँ पर शुरू में, यही चीज उरीदो, अलबत्ता यहाँ पर इजाफा है मिन फजलिक का। क्या इजाफा है? मिन من फजलिक का। فضلك. हाँ, ठीक है, बोलिए। नाम أريد شقة من فضلك. हम्म, أريد ستارة من فضلك. हम्म, أريد أريكة من فضلك. हम्म, أريد ثلاجة من فضلك. हम्म। أريد سجادة من فضلك. नाम जो पढ़े थे हम शुरू में, उसमें मिन फजलिक का इजाफा किया गया था, बाकी और कोई चीज नहीं। सादिस पर आते हैं। ये वही चीज जो अभी हम पढ़े आज के दर्स में, अशक्का फी दौरिल अव्वल, आपको ये तीनों साथ में लेना है, ठीक है। उसके साथ जोड़ देना सबको, ये तरतीब से, अव्वल सानी सालिस राबे खामिस। नाम कौन पढ़े हैं? नाम अशक्कतु फी, الشقة في الدور الأول. मुमताज। الشقة في الدور الثانية. सानी, अशक्कतु पढ़े, अशक्कतु पढ़ेंगे। الشقة नाम الشقة في الدور الثالث. नाम الشقة في الدور الرابع. नाम الشقة في الدور الخامس. मुमताज। आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए कम लगा हुआ है, कम, कम का सब पर सवाल लगाकर पूछेंगे। कम के बाद जो लफ्ज आ रहा है, जो कलमा आ रहा है, वो मंसूब होगा। उसके बाद आपको फिर शक्का बोलना है। नाम, चलिए कौन पढ़ेंगे इसको? कम, कम गुरफतन फी शक्का. नाम कम सितारतन फी शक्का. नाम कम हम्माम फी शक्का. हम्मामन, कम हम्मामन। मामन फी शक्का. नाम कम सज्जादतन फी शक्का. नाम कम सल्लाजतन फी शक्का. नाम। कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं शेख। अभी सामिन, यहाँ पर भी वो चीज जो अभी हम पढ़े, लदैना का इस्तेमाल, यहाँ पर आपको लदैना सब में जोड़कर बोलना है, और सबके आखिर में जमीलुन बोलना, क्योंकि सब मुदक्कर है, ठीक है। आगे मुअन्नस वाला आ रहा है तो वहां पर जमीलतुन बोलना। हाँ, लदैना बोलिए। लदैना बैतुन जमीलुल. नाम लदैना फुरनुल जमीलुल. नाम लदैना सखानुन जमीलुल. हाँ, यही चीज यहाँ पर है। अब उसके बाद वाली में यहाँ पर आपको जमीलतुन बोलना, क्योंकि मुअन्नस है। हाँ, बोलिए। लदैना सखान नहीं, जमीलतुन. शक्कतुन, लदैना शक्कतुन। लदैना शक्कतुन
जमीलतुन नाम लदैना सज्जादतुन जमीलतुन नाम लदैना गुरफतुन जमीलतुन नाम मुमताज। आखिर में फी अय्यि दौरिन, ये अभी जो हम पढ़े उसकी आप गौर करेंगे इस तरह कि जितनी तरकीब आप पढ़े सबको एक साथ जमा कर दिया। नाम फी अय्यि दौरिन अशक्का। नाम फी अय्यि दौरिन असल्लाजा। फी अय्यि दौरिन अलगुरफा। फिर गुरफा को लेंगे। नाम फी चलिए अय्यि कौन कर रहे हैं इसको। दौरिल फी अय्यि दौरिल अशक्का नाम फी अय्यि गुरफतिन अशल्लाजा नाम फी अय्यि बैतिल गुरफा ये भी एक तरीका जिसमें कम जुमले हुए। दूसरा तरीका कि कई जुमले इसमें बनाते हैं, तो कैसे हम बोलेंगे फी अय्यि दौरिन अशक्का, फी अय्यि दौरिन असल्लाजा, फी अय्यि दौरिन अलगुरफा। ठीक है, तीन जुमले हो गए। फिर गुरफा को लेते हैं। फी अय्यि गुरफतिन अशक्का, फी अय्यि गुरफतिन असल्लाजा, फी अय्यि गुरफतिन, ये नहीं मैच करेगा, तकरार। बैत को फिर लेते हैं। फी अय्यि बैतिन अशक्का, फी अय्यि बैतिन असल्लाजा, फी अय्यि बैतिन अलगुरफा। इसमें क्या है, 9 जुमले बन जाते हैं। तो आप गौर करेंगे जितनी भी तराकीब आप पढ़े वहदा सालिसा में सबको इस एक पेज में जमा कर दिया गया। तो इसका नाम क्या रखते हैं इस पेज का। हर वहदा में इस तरह का एक पेज आता है, मुलख्खसुत तराकीब। क्या नाम है, मुलख्खसुन तराकीब मुलख्खसुत तराकीब। हाँ, अभी इसमें कुछ सवाल है या कोई ऐसा लफ्ज, नया लफ्ज तो आने वाला नहीं। किताब की ऐसी तरतीब है कि जो कलिमात आप पढ़े हिवार में, उन्हीं कलिमात आपको आगे तरकीब में तमारीन में आते, नए आने वाले नहीं। फिर भी अगर किसी को कोई लफ्ज कोई कलिमा कोई ताबीर नहीं समझ में आई तो पूछे। आगे फिर अल असवात शुरू हो जाएगा। अभी इरादा है कि असवात और लिखने की जो चीज़ है उसको थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ताकि हम ज्यादा पढ़ सकें। हाँ, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह 2 पेज हमने पढ़ लिया। मिन फजलिक का मिन फजलिक, प्लीज, बराए करम, बराए मेहरबानी। जी जी